Good morning, everyone, and welcome to the class. Wish you all a very happy New Year 2021. Let us start afresh in all walks of life. And among all these, the most important is our studies. So, we are going to continue with it. And today, we will start the revision of chapter Fundamental Rights. Okay, so when we were discussing the chapter Constitution, why and how, we have seen that one of the most important function of the Constitution is to limit the powers of the government, because the government is given power by the Constitution itself. The various organs of the governments are there, which are given particular functions and powers by the Constitution. But besides giving them powers, what is important that these powers must be limited. There cannot be unlimited powers to the organs of the government, because if there is no limit, then it will become absolute. So it is very much important that the powers of the government must be limited, and this limitation is set by the Constitution itself. And in our Constitution, this limitation is set in the form of fundamental rights of the people, which is given by the Constitution. So these fundamental rights are a type of limitation on the powers of the government. These fundamental rights are important for the development of the personality of the individual. And we will discuss first of all two examples. Through these two examples, the real life examples are there. These two examples will prove the importance of fundamental rights, importance of the mentioning of the fundamental rights in the Constitution, and the importance of the implementation of the fundamental rights. Both these things will become clear by these two examples. The first example is about there was Asian Games was to be conducted in India, and for that purpose, in order to organize that Asian Game, what was happening that so many construction work was going on in Delhi by the government. Okay, and the year was 1982, and we see that the government has engaged many contractors for this purpose in order to construct the flyovers and the stadiums. Contractors were engaged by the government, and when the government engaged contractors, then it is up to the contractor. Whatever is done, that is done by the contractors. So what happened that these contractors engaged many laborers, many workers from different parts of the country, and these workers belong to the very poor section of the society. And it's a regular feature. ऐसा ही होता है, whatever wherever we see construction work is going on, the labor who are engaged in that construction work, they belong to the lowest section of the society, the poorest section of the society होते हैं. And at that time it was observed, it was found that these contractors were not following the rule of the law, which is regarding the minimum wages of the workers. The workers were paid less, and their working condition was also very bad, but they all were working in that condition because they are so poor, they are so much illiterate, and they are in so much in need of money that they can't think of starting any kind of protest or raising their voice against any kind of exploitation. Exploitation हो रहा था,
And there may be many people among the workers who may be knowing that they are getting less wages than what is prescribed by the government. They are getting exploited. It is against the constitution. There may be some people among the workers who were knowing all these things. Still, they can't protest, because अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि स्ट्रेंथ इन पुअर वर्कर्स के पास नहीं हो सकती है. हर तरह से वो वीक होते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स. एक्सप्लॉइटेशन जब भी होता है तो वो जो वीक होता है उसी का एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि जो एक्सप्लॉइट करने वाले होते हैं दे आर नोइंग दैट द पर्सन इज नॉट हैविंग द courage or the strength to go against them. This is the reason of exploitation. तो इस तरह का एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम जो था वो ऑन कंस्ट्रक्शन एरियाज में चल रहा था. बट क्या हुआ कि जो सोशल साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि इस तरह से वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और जिस तरह से उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट का है उससे कम उनको दिया जा रहा है, तो इस तरह का अगर काम हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड बेगार. बेगार बेगार जब हम किसी को उसके काम के बदले में जितना उसका हक होता है ना, जितना उसे मिलना चाहिए काम का रेम्यूनरेशन पेमेंट, उससे कम जब हम उसको देते हैं तो उसे हम बेगार कहते हैं. कि मतलब काम तो हमने ले लिया बट पैसे हमने अपने हिसाब से दिया. ठीक है, ये बेगार इट्स अ हिंदी टर्म है ना. इसी के लिए जो इंग्लिश टर्म है हमारा वो क्या होता है, दैट इज फोर्स्ड लेबर. इसको हम कहते हैं फोर्स्ड लेबर. लेबर जो कराया जा रहा है वो फोर्सफुली कराया जा रहा है, और उसमें जिस तरीके से काम हो रहा है इट लीड्स टू exploitation, and it is one of the fundamental rights of the people of the India, and that is right against exploitation. तो ये जो अगर बेगार और या फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी किसी से बेगार नहीं करा सकता है, किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकता है. लेकिन ये चीज़ें हो रही थी, वो भी दिल्ली में. ठीक है, गवर्नमेंट का जो काम था जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया, उन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से ये इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था. तो जब सोशल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जब इस पर ध्यान दिया और इस मामले को फिर वो कहाँ ले गए, मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, क्योंकि इट वॉज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द वर्कर्स. तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो यही बेसिस पे था कि इट इज अगेंस्ट दैट राइट which is given to us by the constitution, the right against exploitation. और इसमें हम क्या देखते हैं कि कोर्ट ने इस प्ली को एक्सेप्ट किया, yes, it is true, and then it directed the government. क्या डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि जो 1000 ऑफ वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको जो भी वेजेस है, मिनिमम वेजेस आपने सेट किया है, वो सही में उन्हें मिलना चाहिए. दैट शुड बी गिवन टू देम. और जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के डायरेक्शंस देती है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट बिकम्स वेरी एक्टिव और उसको फिर फॉलो किया गया. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए थे, बट दैट वाज नॉट प्रैक्टिस्ड, है ना. पीपल वर मिसयूजिंग, they were not paying attention to the provisions of the constitution. They were of the opinion कि कोई हमारे अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये छोटे छोटे लाचार हेल्पलेस वर्कर्स हैं, इनकी क्या औकात कि हमारे सामने हमारे अगेंस्ट जाएंगे, हम जितना भी देंगे इन्हें तो काम करना ही पड़ेगा. बट ये नहीं हुआ, है ना. ये समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम. उसने जो हमें राइट्स दिए हैं वो राइट्स हमें मिलना है. अगर आप नहीं देंगे, राइट्स के अगेंस्ट आप जाएंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, है ना. तो ये बताता है कि किस तरह से
राइट्स को वो किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। जो चीज़ है हमें दिया गया है वो हमें अगर नहीं मिलेगी तो हमें वो लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, है ना। तो ये तो एक अच्छी एग्जांपल है कि किस तरह से हमें राइट्स मिल गए, है ना। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा है वो है अंडर ट्रायल्स के रिगार्डिंग। जिन अंडर ट्रायल्स के बारे में हमने जुडिशियरी के अंदर पढ़ा है PIL में, उसी तरह का एक केस है, असम का केस है, जिसमें कि जो एक अंडर ट्रायल था, एक्चुअली क्या केस क्या था कि एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसका नाम था माचल लुलुंग। So he was a resident of a village in Assam। ठीक है, असम के एक विलेज का वो रहने वाला था। और क्या हुआ कि उस पर जो चार्ज लगे वो थे कि उसने किसी को बहुत ही सीरियसली इंजर किया था, मारपीट हुई, लड़ाई हुआ, एंड उसने किसी को सीरियसली इंजर किया और उस पर केस लगा। और ट्रायल जब चल रहा था कोर्ट के अंदर तो ये पता चला कि ही वॉज मेंटली नॉट साउंड, मेंटली अनस्टेबल था। तो ट्रायल नहीं चल सकता वैसे केस में। अगर कोई जिस पे भी चार्ज लगा है, इफ ही इज फाउंड टू बी मेंटली अनस्टेबल, देन इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू ट्रायल सच पर्सन। उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज डन कि जो भी मेंटली अनस्टेबल पर्सन है पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिजिकली भी अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम भी है या मेंटल प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, तब उस पर ट्रायल चलाया जाता है। तो यही माचल लुलुंग के साथ भी यही हुआ कि उनको ये समझा गया कि हाँ ही वॉज मेंटली अनस्टेबल, तो उनको एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। और रिमेंबर ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जब उन पर ये चार्ज लगा था तो वो 23 साल के थे। ठीक है, अब उनको भेज दिया गया मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट वॉज सक्सेसफुल, अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, वो सही भी हो गए। और जब सही हो गए तो 1967 में फर्स्ट टाइम जो हॉस्पिटल के अथॉरिटीज थे उन्होंने ये भेजा, जेल के अथॉरिटीज को उन्होंने ये नोटिस भेजा कि नाउ ही इज फिट फॉर ट्रायल, आप इनको ले जा सकते। ठीक है, लेकिन जेल की अथॉरिटीज की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। 1967 के बाद जब कोई भी रिप्लाई नहीं आया, नेक्स्ट टाइम फिर 1996 मतलब कैन जस्ट इमेजिन द गैप बिटवीन दीज टू टाइम पीरियड। कि एक बार 1967 में रिमाइंडर भेजा गया, देन 1996 में भेजा गया, और 96 में फिर भेजा गया। तो फिर वही हुआ, कोई रिप्लाई उधर से नहीं आया, जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी अटेंशन पे नहीं किया गया कि जो माचल लुलुंग है जो कि अंडर ट्रायल है, जिन पर कि केस लगा हुआ है ना। तो ये जो कंडीशन है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि केस उन पे चल रहा है बिकॉज, और ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं अंडर ट्रायल्स। उन पर केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो अब जो केस चल रहा है तो उसमें वो क्या है, उनको न तो उनका ट्रायल हुआ, न तो उनको कुछ छोड़ा ही गया। एक तरह से वो क्या है, एक तरह से वो जुडिशियल कस्टडी में है। जब वो हॉस्पिटल में भी है तो वो दैट इज इन द जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि जब उनको मेंटल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था तो दैट वाज अंडर द जुडिशियल कस्टडी। ये तो नहीं कि वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के निकल जाते, इट वाज नॉट पॉसिबल। वो तो ट्रायल चल रहा है। फिर से जब वो उनको ठीक हो गए तो प्रोसेस यही था कि जब हॉस्पिटल ये सर्टिफाई करेगा कि यस नाउ ही इज मेंटली स्टेबल टू स्टार्ट द ट्रायल, तो उस केस में फिर उसको उस पर ट्रायल फिर से स्टार्ट होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसने अपनी ज़िंदगी के
54 ईयर्स, यू कैन जस्ट इमेजिन, अपनी लाइफ के उसने 54 ईयर्स जो है वो उसी हॉस्पिटल में, उसी जुडिशियल कस्टडी में स्पेंड कर दिया। तो ये क्या है? दिस इज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना। कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज नॉट अ सिंगल केस, ये कोई एक केस तो हम लोग सिर्फ माचल लुलुंग के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट ऐसी तो बात नहीं है कि ये एक ही एक ऐसा केस है। ऐसे हजारों केस जो थे वो होते रहते हैं, हो मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ केसेस। जब हमने पीआईएल को डिस्कस किया था तो जो पीआईएल की स्टार्टिंग होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, वो इसी मैटर पे होती है, जो अंडर ट्रायल्स के साथ जो इल ट्रीटमेंट होता है जेल के अंदर, उसी कारण से ये पीआईएल आता है। और उसके आने के बाद हम कहेंगे कि स्थिति जो कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव की है, बट स्टिल ये इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे कंट्री में, हमारे सिस्टम में काफ़ी आम चीज़ है, हम जिसको कहेंगे। क्यों हिमाचल लुलुंग के साथ इस तरह की चीज़ हुई? बहुत वीक सेक्शन को वो बिलोंग कर रहा है, पुअर है, इलिटरेट है, मेंटली वीक है था। देन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली फैमिली में कोई उसके पीछे उसको देखने वाले नहीं होंगे, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो ये क्या है? दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। अगर इस केस में जो माचल लुलुंग के ऊपर चार्ज लगे थे कि उसने सीरियसली इंजर किया है किसी को, अगर उसको उसमें सजा हो जाती, सपोज उनका ट्रायल चल जाता और उनको सजा मिल जाती, तो मैक्सिमम 2 साल 4 साल, उससे ज़्यादा का सजा नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ मारपीट हुई थी। इट वॉज नॉट एनीथिंग एल्स, मर्डर वगैरह का तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मारपीट की बात है। तो 4 साल 5 साल, उससे ज़्यादा का उनको सजा नहीं मिलता। बट उन्होंने कितने साल बिताए? 54 साल, 54 ईयर्स वो जुडिशियल कस्टडी में गया। और लास्ट में जब वो छूटे 2005 में, उनकी रिलीज जब हुए वो हॉस्पिटल से, तो कैसे हुए? जबकि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी तरफ से एक टीम अपॉइंट किया गया पूरे स्टेट में, ये देखने के लिए कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। एक तरह का इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन टीम थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। वो जब जाती है, देखती है पूरे स्टेट में अंडर, क्योंकि उस समय ये मैटर काफ़ी मतलब उस समय क्या, ये मैटर तो हमेशा का ही हमारे सिस्टम का, ये हमेशा का ही एक बहुत बड़ा मतलब जिसको हम कहेंगे इशू है कि अंडर ट्रायल्स की जो कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए असम के लिए पार्टिकुलरली ये टीम अपॉइंट हुई थी और उनके इनिशिएटिव पे, उनके तरफ से ये चीज़ सामने आती है, तब ये बाहर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू लाइफ दिया है, राइट टू लिबर्टी दिया है, लेकिन जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि उनको उनके राइट टू लिबर्टी पूरी तरह से कर्टेल हो गई। और कॉन्स्टिट्यूशन साथ ही हमें ये भी पावर देता है, ये भी राइट देता है कि हमें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए। बट इन सब का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। और वायलेशन कौन कर रहा है? हु इज वायलेटिंग दीज फंडामेंटल राइट्स? द सिस्टम इटसेल्फ। ये कोर्ट की तरफ से ही हो रहा है। देयर मे बी मैनी रीजंस, बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, बर्डन होता है, स्टाफ की कमी होती है, बट एक इंसान की जो ज़िंदगी की अहमियत है वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी लाइफ पूरी की पूरी इसमें ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। जब हमने पहला केस को देखा, फर्स्ट जो हमने देखा कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे, लेबरर्स थे, उनका राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और तब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से वो सही हो जाता है ना, और वर्कर्स जो हैं वो उनको मिल जाता है, प्रॉपर वेजेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा केस है वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका तो कोई रेमेडी नहीं है। मतलब जिस पर्पस से
हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है वो पूरा का पूरा पर्पस से डिफीट हो जा रहा है इस तरह के केसेस में। तो हम इसी के साथ हम लोग ये समझेंगे कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। न सिर्फ ये कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने चाहिए, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर नहीं हो रहा है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो फिर हमारे सामने क्या रास्ता है, कोर्ट में जाने का रास्ता। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बताता है कि किस तरह से राइट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उनका इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। और एक डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल हो सकती है जबकि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कुछ राइट्स मिले जाए, उनको राइट्स मिले और गवर्नमेंट जो है वो इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करे। गवर्नमेंट जो है वो न सिर्फ रिकॉग्नाइज करे थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स होते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इन राइट्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड दोज राइट। कैसे उस राइट्स को सेफगार्ड किया जाए उसके लिए भी प्रोविजंस होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे लिए एक नया टर्म आता है जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। अब ये बिल ऑफ राइट्स जो है बिल ऑफ राइट्स क्या हुए, बिल ऑफ राइट्स जो होते हैं जब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स का जो लिस्ट रखा जाता है, मेंशन किया जाता है, जिसको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है, एंड दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। इसी को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ राइट व्हेन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स जो होती है वो प्रोहिबिट करती है गवर्नमेंट को कि वो कोई भी इस तरह के काम नहीं करे जिससे कि इंडिविजुअल्स के राइट्स का वायलेशन हो। और अगर किसी भी तरह से किसी भी रीजन से इंडिविजुअल के राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको वो उसकी रेमेडी करती है, कैसे उनको वो फिर से मुहैया कराया जाए, अवेलेबल कराया जाए। ठीक है। तो ये हमारा बिल ऑफ राइट्स होता है। और क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी जाती, आज के समय में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंट्री जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स को उन्होंने रखा है। अगर देखा जाए तो देयर इज ओनली वन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में उसने बिल ऑफ राइट्स को जगह दी है। भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में ना हो रहा हो, बट इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने से हमें फायदा क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने का मतलब ये है कि उस राइट्स को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ a breach of the right, violation of the right, then that will be considered against the constitution. And if some changes or some modification is to bring in these list of rights, then what is the need? The need is to amend the constitution. And many times you cannot change it by amending the constitution also, because वो amendment से भी उनको बाहर रख दिया जाता है। ये होता है इम्पोर्टेंस बिल ऑफ राइट्स के। जैसे हमारी कंट्री में, अभी तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जैसे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, बट अमेंडमेंट के थ्रू इसको 6 कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी को फिर हमारे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमारे किसी भी राइट को निकाला जा सकता है।
इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वैसा हो जाएगा तो फिर तो हमारी राइट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और इस राइट्स को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। दीज राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको कि हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, नॉट इवन द गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए आप अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं। वो राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज एक्सेप्शनल केस, उसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर से इस बात को हम लोग ये करेंगे, डिस्कशन फिर से होगी इस मैटर पे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल था, है ना। तो इस तरह से जो लोगों के राइट्स हैं उसको कहाँ से थ्रेट आता है? थ्रेट कौन हमारे राइट्स को छीन सकता है? कोई इंडिविजुअल, है ना, कोई भी दूसरा इंसान है वो हमारे राइट्स को छीन सकता है, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे राइट्स को छीन सकता है। नॉट ओनली दिस, गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, इवन द जुडिशियरी कैन वायलेट द राइट्स। तो ये जो राइट्स हमें मिला हुआ है वो सबके अगेंस्ट है। हमारे राइट्स को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में देने का पर्पस यही होता है। ठीक है, तो ये हमारे मेन चीज़ें हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या प्रोविज़न है। जब हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई वाज इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के साथ ही राइट्स जुड़े हुए हैं। बिना अधिकार के स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। तो जो हमारा स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था, एक्चुअली दैट वाज अ स्ट्रगल फॉर राइट्स ऑल्सो। और ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ये हमें समझ में आया कि राइट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और जो हमारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी तरफ से ये हर समय डिमांड आती रही कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो हमें राइट्स दें, हमारे राइट्स को रिस्पेक्ट करें, है ना। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी ने ये डिमांड किया था कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो हमें मिलने चाहिए। ये कमेटी बनी थी 1928 में, मोतीलाल नेहरू कमेटी। ओके, ये बनी थी 1928 में। तो उस समय ही ये डिमांड हुई थी कि लोगों को राइट्स होने चाहिए, बिल ऑफ राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है, और इसलिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो एफर्ट्स स्टार्ट हुए, तो ये बहुत ही नेचुरल था कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स का जो मेंशन होना ही है, बिल ऑफ राइट्स तो होने ही है। इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह के मतलब ये नहीं था, कंट्रोवर्सी जो थी वो नहीं था। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन राइट्स को लिस्ट किया गया, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल का क्या मतलब होता है। व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इतनी ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिस्ट कर दिया गया। इसको गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ा गया कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों को राइट्स देगी। नो, it was mentioned in the constitution because it was considered so fundamental, so important कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया, एंड स्पेशल प्रोविजंस किए गए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई भी उनको वायलेट न कर सके। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए। ठीक है, और इसीलिए हम इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और इन राइट्स को हमारे कोई भी नहीं छीन सकता है, नॉट इवन द गवर्नमेंट। ये राइट्स हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी मिला हुआ है, पर्सन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गवर्नमेंट है, सबके अगेंस्ट ये राइट्स हमें मिले हुए हैं। ये राइट्स हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी विदाउट दीज राइट्स। ये राइट्स जो होते हैं ना, वो हमारे लाइफ को डिग्निटी देते हैं। हम एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं लीड कर सकते हैं बिना राइट्स के।
अगर राइट्स हमारे पास नहीं हो तो फिर हमारी लाइफ और एक एनिमल के लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग. दैट इज वाई वी नीड सम राइट्स इन ऑर्डर टू लिव लाइफ ऑफ डिग्निटी. एक डिग्निफाइड लाइफ हमें तभी मिल सकती है जबकि हमारे पास राइट्स होंगे. अब तो एनिमल्स राइट्स की भी बात होने लगी. हम लोगों ने इनको भी डिस्कस किया है ना. जब सेकंड बुक में हमने राइट्स को डिस्कस किया तो ये चीज़ें भी आई थी कि किस तरह से राइट्स जो होती है वो हमारे डिग्निटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वाइटल होती है. वी कैन नॉट थिंक ऑफ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ द राइट्स, है ना. तो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास.